Hello everyone, I hope you guys are doing well, and today is the 22nd of December, but by the time you guys are watching this it will be the 8th of January, and I wanted to make a video so that मैं दिखा सकूं कि क्या क्या आप लोगों ने errors किए हैं, and since I won't be here for the paper review, so I'm leaving this video so that you guys can fix your errors, and please make sure you do it. Math आपका एक appearing subject है, ठीक है? It's not something that you guys should take lightly. In fact, I'm sure that most of you who've applied to colleges are given a certain condition, that is a decent grade, and by that I mean a B or an A in math, ठीक है? So for as long as you guys won't जब तक आप अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं, you might end up repeating the same error again, ठीक है? So I'll try and break every question down, and along with that discuss the errors, the common errors that you guys made, ठीक है? उसका मकसद सिर्फ किसी का मजाक उड़ाना नहीं है. If you fall into that category, या आपको ऐसा लगे कि ये तो मैंने किया, तो उसका ये मेरा हरगिज़ मतलब नहीं है कि I'm making fun or something. It's just so that you guys are aware of what could possibly go wrong, and so that you guys can avoid it next time. ठीक है? So let's get started. The first question, very easy, and that's how usually the pattern of the paper is going to be. पहले आपको कोई arithmetic के सवाल दिए जाएंगे, algebra, decimal, stuff like that, word mass, percentages perhaps, and then the question paper will gradually progress on to the more complex topics. ठीक है? So fractions ऐड करने के लिए जो सबसे पहले हम लेते हैं वो है LCM. ठीक है? 7 और 5 since prime numbers हैं, इनका LCM लेने के लिए आप एक काम ही करें, सीधा इनको multiply कर दें. तो 7 times 5 gives you 35. ठीक है? If you want to make 7 be equal to 35, you're gonna have to multiply it by 5, so that means हम 2 को भी 5 से multiply करेंगे, so 2 times 5 is 10, and then we'll have to multiply 5 by 7 to make it equal to 35, so that means हम 1 को भी 7 से multiply करेंगे, and बीच में plus sign है, so let's carry that forward as it is. So 1 times 7 is 7, 10 plus 7 is 17, 17 over 35, that's it. अब इसमें जो common error आप लोगों ने किया है वो I don't know, maybe you guys took it lightly or didn't pay attention. वो ये कि आपने simple numerator को numerator से add कर दिया, denominator को denominator से add कर दिया, which is absolutely incorrect. ठीक है? जब भी कोई fraction add कर रहे हों, याद रखें कि हम जो चीज़ लेते हैं वो LCM लेते हैं. ठीक है ना? LCM is short for least common multiple. या हम simply ये भी कर सकते हैं कि दोनों fractions को आपस में multiply किया, 7 into 5 35 हो गया, 2 into 5 कर दिया, that's 10. ठीक है, and 7 1 into 7 कर दिया, that's 7. दोनों को ऐड कर दिया, और फिर इसके बाद ये ज़रूर देख लीजिएगा कि क्या ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं. अगर हो सकते हैं तो करना पड़ेगा, you can't leave it as it is. नहीं हो सकते तो just let it be. ठीक है, so part B में again fractions को multiply हम ऐसे करते हैं कि numerator से होता है और denominator से होता है. But before I multiply these two fractions, this is a mixed number. मुझे इसको change करना होगा into an improper fraction. और वो कैसे? 5 times 1 is 5. So, oops, Food Panda notifications, not right now. 5 times 1 is 5. 5 plus 1 is 6. So 6 upon 5. ठीक है? So 2 upon 5 into 6 upon 5. So that becomes 2 times 6 is 12. 5 times 5 is 25. There you go. That's your final answer. And please make a habit of writing your answer in the given space only. ठीक है? जो पीछे आपको जगह दी हुई है वो आप वर्किंग के लिए बेशक यूज़ करें, लेकिन फाइनल आंसर अपना जो जगह दी हुई है उसमें ही रखें. Number 2. Write 17 whole 1 upon 2 as a fraction in its simplest form. अब इसमें पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने कॉमन एरर क्या किया. वो ये कि आपने सिंपली 17.5 को ही ना आपने फ्रैक्शन बना दिया है, बट लेकिन 17.5% है. तो मैं पहले बता दूं कॉमन एरर क्या है. वो ये कि 17.5 लिखा, फिर जिस तरह हम एक नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं इंटू 10 अपॉन 10 करके, ये आप लोगों ने कर दिया. ठीक है, विच इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, एंड इस वजह से यू गाइस हैव लॉस्ट मार्क्स. एंड एज आई ऑलवेज से 1 मार्क के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत अनफॉरगिविंग होते हैं. देयर इधर करेक्ट और रॉन्ग, देयर इज नो सच थिंग एज हाफ अ मार्क, और अगर 2 मार्क्स का होता तो हो सकता है शायद 1 मार्क आपको मिल जाता. But questions like these need to be exactly correct. So this is wrong. ठीक है? The correct way of doing this would be that first you write 17.5%. Percent का मतलब होता है upon 100. ठीक है? Now you convert it into a fraction, जिसके लिए हमें दोनों numerator और denominator को 10 से multiply करना पड़ेगा, because हमें decimal को एक place आगे लेकर आना है. So this becomes 175 over 1000. ठीक है? इसको simplify करना शुरू करते हैं. Let's start with 5. ठीक है? So 5 3s are 15, 2 carried, 5 5s are 25, and then 5 2s are 10, 0 0 as it is out here, so 200. Now as you can see that 35 and 200 both are multiples of 5, so that means हम वापस इनको 5 से simplify कर सकते हैं. So 5 7s are 35, 5 4s are 20, 0 carried forward, so 7 upon 40,
is our final answer. ठीक है ना, इसको फ्रैक्शन में ही छोड़ देना है because the question says so, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. Now part B. पार्ट बी में याद रखें समथिंग नोन एज BODMAS जो आपने यकीनन बचपन में पढ़ा होगा. बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स. ठीक है, दैट मीन्स अगर हम कोई ब्रैकेट देखें तो सबसे पहले उसको करेंगे. ओ इज नॉट फॉर ओपन. आई डोंट नो व्हाई मोस्ट ऑफ यू माइट रिमेंबर इट एज ओपन, बट इट्स फॉर ऑर्डर. ऑर्डर का मतलब ये है कि कोई भी पावर अगर आपको देखे ना एक्सपोनेंट तो उसको इवैल्यूएट करना है. देन अगेन डी इज फॉर डिवीजन, एम इज फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए इज फॉर एडिशन एंड एस इज फॉर सब्ट्रैक्शन. ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें सबसे पहले जो है वो 1 माइनस 0.4 करना पड़ेगा, विच इज नाउ मैं आपको साथ में ये बता देता हूँ कि डेसिमल्स ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू हैव मिस्ड दिस अप एज वेल, बट देन अगेन दैट्स ओके, देयर इज अ सेकंड चांस, सो यू नो as long as we learn from our errors. So 0 minus 4 cannot be done. That means इसमें से एक कम करना पड़ेगा और इसका एक आ जाएगा 0 के पास. तो 10 minus 4 is 6. 0 minus 0 is 0. तो so 0.6. सही है. So that means bracket हमने solve कर लिया and that is 0.6. अब 4 into 0.6 कैसे करें? 4 into 0.6 करने का बहुत आसान तरीका है, वो ये कि आप सिंपली आप भूल जाएं थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे एक डेसिमल है. ठीक है, आप सिंपली 4 लें यहाँ से और यहाँ से लें 6 और इनको मल्टीप्लाई कर दें और लिखते हैं 24. अब you count the number of decimal places that you see. 4 तो एक integer है, so that means there's absolutely no decimal place here. 0.6 में एक decimal place है. So आप भी अभी आपका decimal यहाँ बैठा है ना, तो आप इसको एक place पीछे लाएं. तो अब क्या हो गया आपका ये नंबर? अब आपका ये नंबर बन गया 2.4. So that means ultimately what we have to do is 6 plus 2.4 since this became equal to 2.4. सही है ना? So 6 plus 2.4 कैसे करें? Again, no worries. 6.0 लिखा, 2.4 लिखा. डेसिमल जब ऐड कर रहे होते हैं तो डेसिमल को अलाइन करना बहुत ज़रूरी होता है. तो 0 plus 4 is 4 and 6 plus 2 is 8. So 8.4 is our final answer. सही है, आगे चलते हैं. Question number 3. Express 198 as a product. Product का मतलब होता है multiply. Prime नंबर सबको पता होने चाहिए. वो नंबर्स जिसके सिर्फ दो distinct factors होते हैं. 2 distinct factors only. जैसे फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, ये बेसिकली वो नंबर्स हैं जो कि सिर्फ दो यूनिक नंबर्स की टेबल में आते हैं, जिसमें से एक 1 है और दूसरा ये खुद है. सही है. फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो डिवाइड कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल 6 इज अ फैक्टर ऑफ 18. वाई? बिकॉज 18 जो है 6 जो है वो बेसिकली 18 को डिवाइड कर सकता है. ठीक है, तो ये तो हो गया इसका बैकग्राउंड. अब इसको सॉल्व कैसे करें? फर्स्ट यू राइट 198. ये वो चीज़ है जिसको आप लोग आई थिंक एलसीएम के नाम से जानते होंगे, बट अगेन एलसीएम इज़ इनकरेक्ट. एलसीएम निकाला जाता है दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का, एक से ज़्यादा नंबर का. बेसिकली ये हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन ही बोलते हैं. देयर इज नो अदर वे टू इट. सो 198 को हम डिवाइड करते हैं विद द स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर एंड दैट इज 2. ठीक है ना. So 198 divided by 2 will be 2 9s are 18. 1 उधर गया 98. Is it? नहीं 99. सही है. And then 3 से, so 3 times 33 and then वापस 3 से हो सकता है, so 3 times 11 and then that's about it. सिर्फ 11 से ही हो सकता है और ये हम करते रहेंगे जब तक यहाँ पे ये 1 नहीं आ जाता. अब आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 into 3 into 3 into 11, या अगर आपको ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा so you can write it as 2 into 3 square into 11. The answer is still the same. I mean, it means the same basically. So part 1, find the largest number that divides exactly into m and n. अब ये भी हम बेसिकली पता है क्या निकाल रहे हैं? इसको हम निकाल रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. डिवाइड्स एग्जैक्टली का मतलब कि फैक्टर है. ठीक है, लार्जेस्ट का मतलब क्या कि हाईएस्ट है. अच्छा, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं? हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी पावर है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 2 स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई 2 की कौन सी 2 स्क्वायर और 2 क्यूब को अगर मैं कंपेयर करूं तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम फैक्टर आउट कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको लिख के दूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब और मैं आपसे कहूँ कि इसमें से कॉमन लें, तो आप एक्स तो हरगिज़ कॉमन नहीं लेंगे, आप कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर, बिकॉज दैट्स द मैक्सिमम पॉसिबल पावर दैट यू कैन फैक्टर आउट फ्रॉम दीज टू एक्सप्रेशंस. सही है ना. सो इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 स्क्वायर और 2 क्यूब में से ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉमन लिया जा सकता है वो 2 स्क्वायर लिया जा सकता है. ठीक है ना. 3 और 3 स्क्वायर में 3 की पावर 1 है एक तरफ और 3 की पावर 2 है, तो इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन लिया जा सकता है वो 3 लिया जा सकता है. सही है ना. सो द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स एग्जैक्टली इनटू m and n is 8 times 3. 8 times 3 is 24 and that's your final answer. ठीक है, end of story. Find the smallest value of k such that m into k. अच्छा, m को ज़रा दोबारा झांक लेते हैं. Here's m. ठीक है, m into k is a cube number. So let's write down m first.
2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। अच्छा, क्यूब नंबर बनाने की कंडीशन ये होती है, देखें क्यूब्स कैसे होते हैं, जैसे 8 है, 27 है, 64 है, तो 8 इज अ परफेक्ट क्यूब इसलिए क्योंकि 8 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब, 27 इज अ परफेक्ट क्यूब इसलिए बिकॉज 27 कैन बी रिटन एज 3 क्यूब, 64 इज अ परफेक्ट क्यूब इसलिए बिकॉज 64 कैन बी रिटन एज 4 क्यूब, ठीक है ना। फिर सिमिलरली 216 इज ऑल्सो परफेक्ट क्यूब और वो होता है 6 का, ठीक है, एंड 6 क्यूब कैन फर्दर बी रिटन एज 2 क्यूब्ड इनटू 3 क्यूब। सो इन शॉर्ट जो पावर्स हैं वो सारी वो या तो 3 होनी चाहिए हैं या फिर 3 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे कि 64 जो है ना उसको बजाय इसके कि मैं 4 की पावर पे लिखूं मैं इसको 2 पावर 6 भी लिख सकता हूँ। सो द पैटर्न हियर इज दैट रिमेंबर ओनली अ परफेक्ट क्यूब into a perfect cube will give you a perfect cube, और perfect cube होने के लिए जो पावर है, powers should be either 3 or multiples of 3, ठीक है ना, multiples of 3, सही है। अब हमें इसको k से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, k क्या है अभी फिलहाल ना मुझे पता है ना आपको पता है, लेकिन हमें ये पता है कि ये सब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, इस नंबर ने बन जाना है परफेक्ट क्यूब। अब ज़रा रेड बहुत हो गया, कलर चेंज करते हैं। 2 स्क्वायर को अगर परफेक्ट क्यूब बनाना है तो इसको यकीनन 2 पावर 3 के बराबर होना पड़ेगा। तो इसका मतलब k जो है 2 स्क्वायर को 2 क्यूब करेगा, k का भी ऑब्जेक्टिव ये है, तो अगर k की ये ड्यूटी है कि वो 2 स्क्वायर को 2 क्यूब करे तो k में एक 2 होना ज़रूरी है। अब सिमिलरली 3 पावर 1 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इसको क्या होना पड़ेगा, इसको 3 क्यूब होना पड़ेगा। अब k की ये ड्यूटी है कि वो 3 को 3 क्यूब करे, जिसके लिए k को बराबर होना पड़ेगा 3 स्क्वायर के। सिमिलरली 5 की भी ये ड्यूटी k की ये भी ड्यूटी है कि वो 5 को बना दे, क्या 5 क्यूब बना दे। तो 5 पावर 1 से 5 पावर क्यूब बनाने के लिए k को बराबर होना पड़ेगा 5 स्क्वायर के, सही है ना। सो लेट्स सी, ये बेसिकली जो हमने निकाला है ये हमने k की वैल्यू निकाली है जो k बराबर होती है 2 इंटू 9 इंटू 25। 25 टाइम्स 2 इज ईजियर टू इवेल्युएट, ये हो जाएगा 50, 50 इंटू 9 कितना होगा 425, इज इट, यप 425 साउंड्स गुड। सो दैट्स आवर फाइनल आंसर। Oh, wait a minute. एक गड़बड़ कर दी, वो ये कि I didn't copy the number correctly and it turns out that it's already 5 squared. So 5 square को 5 क्यूब करने के लिए सिर्फ एक 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो काफ़ी है। So that means this is all wrong now. 2 into 3 cube, so that's 2 times 9 times 5, so 5 times 2 is 10, 10 into 9 is 90. ये सही जवाब है, apologies for the error that I made earlier. सही है, so moving on. Question number 4. Question number 4 was a question that most of you got right, which was a pleasant experience for me when I was checking the papers. So we have to arrange these numbers in order, starting with the smallest. That means ascending order में हमने इसको arrange करना है. तो एक काम करते हैं ऐसे questions में जहाँ आपको values ना दी हुई हों. अच्छा, by the way, props to the kids जो कि उन्होंने values खुद अपनी तरफ से assume की और उसको फिर solve करा. That was actually very smart of you, and obviously. That doesn't mean the ones who did it without assuming values वो उसमें कुछ कमी थी, उन्होंने भी बिल्कुल सही किया. But again, that's just to give you an idea कि हर सवाल को solve करने का कोई एक तरीका नहीं होता. There are multiple ways of solving a question. ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम पहले किसी तरह से फिगर आउट कर लेते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है. ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे d is less than a which is less than c, इसको हम पढ़ेंगे a is less than e which is less than c, और इसको हम पढ़ेंगे a is less than b which is less than e. अच्छा, as far as a is concerned, a हमें दिख रहा है कि वो e, b और c तीनों से छोटा है. अच्छा, d जो है वो a से भी छोटा है, so that means इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है कि d हमारा सबसे छोटा नंबर होगा. सही है ना, तो ये तो हमने फिगर आउट कर लिया कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है. ठीक है ना, स्मॉलेस्ट एक्चुअली सबसे स्मॉलेस्ट इज रिडंडेंट. अब हमें डी कहाँ गया, हाँ ये रहा. अब हमें चाहिए द लार्जेस्ट नंबर. अच्छा, लार्जेस्ट नंबर हमें दिख रहा है कि c जो है वो a से भी बड़ा है, d से भी बड़ा है. ठीक है, और वही c आपका a से भी बड़ा है और वापस e से भी बड़ा है, और e जो है वो b और a दोनों से बड़ा है. तो अगर सिर्फ थोड़ी देर के लिए e को देखें, e b a दोनों से बड़ा है. ठीक है, और c जो है वो अगर इसको देखें हम वो e से भी बड़ा है. So that means as far as the largest is concerned, largest is going to be c. There's no doubt about that. अब बचा क्या, अब बचा आपके पास a, b और e.
अच्छा, ए बी ई के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो ए बी ई का आपस में जो ऑर्डर है वो यहीं पे लिखा हुआ है कि ए जो है वो बी से छोटा है और बी जो है वो ई से छोटा है। अब सिंस वी हैव आवर स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फिगर्ड आउट, वी जस्ट हैव टू वरी अबाउट ए बी एंड ई, और वो हम एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। एंड दैट्स अबाउट इट, एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5 sorry. The scale of a map is 1:25,000. अच्छा, अब इसका क्या मतलब है 1:25,000 का? 1:25,000 का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे सेंटीमीटर लेते हैं तो ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे किलोमीटर लेते हैं तो ये भी आपका 25,000 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, जो यूनिट आप लेफ्ट साइड पे लगाएंगे वही राइट साइड पे लगेगा। अच्छा, अब सवाल आपसे ये कह रहा है द स्केल कैन बी रिटन एज 1 सेंटीमीटर टू d किलोमीटर। अच्छा, ये हरगिज नहीं हो सकता कि वैल्यूज भी सेम रहें और यूनिट जो है वो दोनों साइड पे अलग अलग हो जाएं, ये तो गलत हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, वी टेक दिस रेशियो, ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं फाइन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 25,000 सेंटीमीटर, सही है ना। इसको सेंटीमीटर में रहने देते हैं बिकॉज दैट्स व्हाट द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज, और इसको हम ले आते हैं किस में, इसको हम ले आते हैं सेंटीमीटर से किलोमीटर में। अब एट दिस पॉइंट आई रियली होप कि आप सबको कन्वर्जन्स वाले जो वैल्यूज़ हैं वो याद रहें, लेकिन अगर नहीं भी याद तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो ये कि किलोमीटर से मीटर जाया जाता है इंटू 1000 करके, मीटर से सेंटीमीटर जाता है इंटू 100 करके, और सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाया जाता है इंटू 10 करके। एंड ऑफ कोर्स अगर आप उल्टा आ रहे हैं तो आप यही वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बजाय डिवाइड कर देंगे, सही है ना। सो 25,000 को अगर हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं सेंटीमीटर में तो हम वो कैसे करेंगे? अब हम सीधा जा रहे हैं कहाँ से? हम सीधा जा रहे हैं सेंटीमीटर से किलोमीटर में, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी गोना डिवाइडेड बाय 100 एंड 1000, सो ये बन जाएगा 100,000। तो 3 0 यहाँ से और 3 0 यहाँ से गायब हो गए। 25/100 जो है, 25/100 के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप सीधे सीधे डेसिमल को 2 प्लेसेस पीछे ले आए, सो दिस विल बिकम 0.25, ठीक है। पार्ट बी में आपसे कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू विलेजेस इज 8 किलोमीटर, सही है। फाइंड द डिस्टेंस इन सेंटीमीटर्स बिटवीन द टू विलेजेस ऑन द मैप। ओके, अब हम एक काम करते हैं, सवाल हमसे आधी से ज़्यादा मेहनत ऑलरेडी करा चुका है। वो ये कि वी नो दैट 1 सेंटीमीटर ऑन दिस मैप इज बेसिकली इक्वल टू 0.25 किलोमीटर्स, ठीक है। अब क्या करना है आपने, अब आपने 8 किलोमीटर जो है ये एक्चुअल वो है डिस्टेंस है ना, क्यों? क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है ऑन द मैप, सो दैट मीन्स मैप वाली वैल्यू के नीचे आप रखें x और इसके नीचे आप रखें 8। अच्छा, इसमें आपको ये फिक्र करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि ये तो यूनिट्स अलग अलग हैं, हमें अलग अलग यूनिट्स में ही रखना है। बस इस बात का ध्यान रखें कि एक्चुअल के सिंस एक्चुअल का जो यूनिट है वो किलोमीटर है तो इसके नीचे भी किलोमीटर ही आना चाहिए। एंड रिमेंबर दैट वंस यू डू दैट, तो सिंस मैप का यूनिट जो है वो सेंटीमीटर में चल रहा है ना, तो इसके नीचे जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो भी सेंटीमीटर में आएगी, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट, सही है। सही हो जाएगा 0.25x इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 8 डिवाइड बाय 0.25। अच्छा, अब ये कैसे करें? 0.25 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना वो होती है 1/4, सो बेसिकली हम करना चाह रहे हैं 8 डिवाइड बाय 1/4, सही है। अब 8 डिवाइड बाय 1/4 का मतलब है 8 into 4 which is equal to 32, so there you go, that our answer is simply 32 centimeter. End of part B. Alright, part C. The distance between the peaks of two mountains is measured on the map as 76 millimeter. Calculate the distance in kilometer between the two peaks. अच्छा, अगर हम अपने स्केल को वापस रिकॉल करें तो हमारा स्केल हमें बता रहा था that 1 सेंटीमीटर is equal to 2.5 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमें एक्चुअल डिस्टेंस चाहिए वो किलोमीटर में चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 6 says an empty box has a mass of 0.8 kilograms. Correct to the nearest 0.1 kilograms. Write down the lower bound for the mass of the empty box. Alright, so whenever you see limits of accuracy, यहाँ पे lower bound से related question, the first thing that I want you to do is कि आप सबसे पहले जिस पे वो round off हुआ है ना, which is 0.1 in this case, उसको आप करते हैं आधा, so that will become 0.05, ठीक है। अब बात हो रही है किसकी? बात हो रही है 0.1 ऐसे डब्बे की जिसका मास है 0.8 kilograms. Now if you want the upper bound of this, so you will add this value, ठीक है। तो अगर मैं 0.8 में 0.05 ऐड करता हूँ, so that will become 0.85, ठीक है। और अगर मैं इसमें इसका अगर लोअर बाउंड चाहिए तो हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, so that will make it 0.75. Now what do we want in this question? We want the lower bound, so our answer in that case would be 0.75, and that's it, एक मार्क आ गया। The box is filled with books. The total mass of the box and the books is 6 kilograms. Correct to the nearest kilogram. Nearest kilogram का मतलब 1 kilogram.
अपर बाउंड चाहिए होगा तो हम 0.5 ऐड करेंगे, लोअर बाउंड चाहिए होगा तो हम इसमें से 0.5 लेस करेंगे, ठीक है। किस में से? 6 में से, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 हियर आई थिंक आई शुड राइट 6, ठीक है। तो अपर बाउंड क्या हो जाएगा? 6.5, लोअर बाउंड क्या हो जाएगा? 5.5 किलोग्राम्स, ठीक है। डोंट फॉरगेट दैट। Now, work out the lower bound for the mass of the books. अच्छा, now at this point, and I like how most of you followed the given instruction, ठीक है। वो ये कि टोटल जो है, टोटल क्या आप पहले बना लें एक इक्वेशन, ठीक है। टोटल आएगा बेसिकली बॉक्स प्लस बुक्स करके, ठीक है। Now, books would be equal to, books equals to the total minus the books, ठीक है। अब हमें चाहिए इसका लोअर बाउंड। अब दो वैल्यूज को माइनस करके आप चाहते हैं कि आपके पास जो रिजल्ट आए वो कम से कम आए, तो आप क्या करेंगे? जिस चीज़ में से आप माइनस कर रहे हैं उसको कम रखेंगे, एंड व्हाटएवर इट इज दैट यू आर एक्सट्रैक्टिंग यू विल ट्राई एंड कीप दैट एज लार्ज एज पॉसिबल, सो दैट बाय द एंड व्हाट यू लेफ्ट विद इज समथिंग व्हिच इज एज लेस एज पॉसिबल। सो टोटल का लोअर बाउंड हम पहले निकाल चुके हैं, हाँ बिल्कुल निकाल चुके हैं, ये रहा हमारा टोटल का लोअर बाउंड, सो दैट इज इक्वल टू 5.5, ठीक है। इसमें से हमें माइनस करना है क्या? बुक्स का सॉरी बॉक्स का अपर बाउंड, और बॉक्स का अपर बाउंड बी हम पहले निकाल चुके थे विच इज 0.85। सो इन शॉर्ट हमें बेसिकली 5.5 में से 0.85 माइनस करना है, तो उसके लिए हम एक सेपरेटली अपनी कैलकुलेशन करते हैं। 5.5 माइनस 0.85, 0 minus 5 can't be done, so I'll have to take 1 away from 5 and give the 1 to 0, so that'll make it 10. 10 minus 5 is 5. 4 minus 8 again cannot be done, no worries. We have 5 to take care of that. So 14 minus 8 is 6 and 4 minus 0 is 4. So 4.65 is our final answer. And once you do that, इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि जो आपने आंसर देना है क्या वो किलोग्राम्स में ही देना है, and since the answer to that is yes, so this is our final answer, nothing to worry about. Question number 7. One day in 2016, the population of Nepal was 2. अच्छा इसको पढ़ेंगे कैसे? इंग्लिश में जब भी आप नंबर्स पढ़ते हैं ना तो हम कॉमा लगाना शुरू करते हैं फ्रॉम द राइट हैंड साइड। सो 701 है, अगर उल्टा पढ़ें इसको तो 107, फिर एक कॉमा आएगा, फिर 597, फिर एक कॉमा आ जाएगा, सही है ना। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? 28,795,701, ठीक है। I'll repeat, 28,795,701. Write this number correct to 3 significant figures. अब इसमें जो एक आप लोगों ने एरर किया है मेजॉरिटी ऑफ यू ने, वो ये कि आपने इसको सीधा सीधा कर दिया है 288। अब bear in mind कि your rounded off number should in many ways resemble the original value as well, ठीक है। I mean you can't say कि एक population, एक town जिसकी population 28,795,701 है, उसको आप 3 significant figures पे round off करके 288 कर दें। That's incorrect. Like I said, your rounded off number should resemble the original value as well. इसका मतलब नहीं है कि इसके आगे के सारे digits जो हैं वो हम ख़त्म कर दें। So 288 is incomplete. इसका जो correct estimation होगी correct to 3 significant figures, यहाँ अगर हम इसको correct to 3 significant figures लिखेंगे तो वो होगा 288। अच्छा पहले मैं ये भी बता दूं कि 288 क्यों हुआ। बेसिकली 2 हमें चाहिए, 8 हमें चाहिए। अब इस 7 का फैसला हमने करना है कि क्या ये 7 ही रहने देना है या इसको 8 बना देना है। उसके लिए हम देखेंगे 9 को। अब सिंस द रूल इज कि अगर उससे आगे वाला नंबर 5 या ग्रेटर देन 5 हो तो हम उसमें 1 ऐड कर देते हैं। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डन हियर। और बाकी सब जगह पे क्या आ जाएगा? मीनिंग 9, 5, 7, 0, 1 इन सब की जगह पे 0 आ जाएगा। सो 1, 2, 3, 4, ठीक है। सो लेट्स सी नाउ व्हाट दिस नंबर बिकम्स। दिस नंबर बिकम्स 2,880,000. Now, as you can see, this number resembles the original value in much more ways as compared to 288. 288 is clearly incorrect. So yeah. So moving on, part B. The table below shows the approximate population of some countries in 2016 and their land areas. The population of India was approximately, अब इसको कैसे पढ़ेंगे? 3 0 यहाँ पे तो एक कॉमा for 1000 and then 3 0 तो एक कॉमा for million. इसको हम पढ़ेंगे 130 million, ठीक है। In the table above, complete the row for India. Write the number in standard form. अब standard form में convert करने का मतलब है कि हम decimal पीछे लेकर आएंगे और जब तक पीछे लेकर आते रहेंगे जब तक ये number 10 से छोटा नहीं हो जाता। So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अभी क्या बन गया? ये बन गया 1.3 into 10 to the power 8, सही है। Yeah, most of you have done this correctly, so I don't think there's any need to go into detail for this. Part 2 में you have to calculate the total land area of India and Nigeria. Total land area के लिए हम क्या करेंगे? India और Nigeria का जो भी area है, ठीक है, area से मतलब क्या, कौन सी values? ये वाली, ये और ये, इनको हमने कर देना है प्लस।
अच्छा, अब इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म को प्लस या सब्ट्रैक्ट करने के लिए प्लीज़ रिमेंबर ये आप जब तक नहीं कर सकते जब तक इनकी पावर सेम ना हो। सही है, अभी फ़िलहाल ये 10 पावर 6 है और ये 10 पावर 5 है, तो क्लियरली इन दोनों की पावर सेम नहीं है, दैट मीन्स हम एज इट इज़ इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट फॉर दैट मैटर नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो 10 पावर 6 को 10 पावर 5 बना दें या 10 पावर 5 को 10 पावर 6 बना दें। अब एक काम करते हैं, आई ऑलवेज प्रेफर टू टेक द लार्जर वैल्यू एंड मेक इट अ स्मॉलर वैल्यू। सो 10 पावर 6 को अगर मैं 10 पावर 5 बनाना चाहूँ तो इसका एक जो 10 है वो किसके पास चला जाएगा, 3.3 के पास चला जाएगा, तो वो हो जाएगा 33। ठीक है, उसके पास जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस 9.2 इंटू 10 पावर 5 एज इट इज हो गया। सो अब वी कैन, ये भी 10 पावर 5 हो गया और ये भी 10 पावर 5 हो गया। अब हम इसको कन्वीनियंटली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो 33.0 प्लस 9.2, ये हो जाएगा 2, 3 प्लस 9 इज 12 एंड 3 प्लस 1 इज 4, सो 42.2 इंटू 10 पावर 5। अब रिमेंबर ये हमारा आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में हरगिज़ नहीं है, क्योंकि जो हमारा पावर 10 से पहले जो वैल्यू है वो 10 से बड़ी है। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 4.22 इंटू 10 टू द पावर 6। अब डेसिमल जब भी पीछे आता है तो उसको ऑफसेट करने के लिए हम पावर में एक वैल्यू जितना उसको पीछे ला रहे हैं उतना हम पावर में नंबर ऐड कर देते हैं। तो सिंस हम एक प्लेस पीछे लाएं तो हम सिंपली एक नंबर ऐड कर देंगे एंड दैट्स इट। Now, which country in the table has the smallest population per kilometer square? So that means हमने basically करना क्या है, population को divide करना है area से। बजाय इसके कि हम सबको divide करके देखें, since ये paper 1 है तो calculator अभी हमारे पास होगा नहीं, अगर होगा भी तो allowed नहीं होगा उसको use करना। तो हमें काम ही करते हैं, हम simply 10 की powers देखते हैं। ठीक है, population में हम कोशिश करते हैं कि 10 की कम से कम power उठाएं और area में हम कोशिश करते हैं कि area की ज़्यादा से ज़्यादा power देखें कि किस में आ रही है। ठीक है, सो अगर मैं 10 पावर 8 को 10 पावर 6 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आएगा क्या, मेरे पास आएगा 10 टू द पावर पॉजिटिव 2। इधर अगर मैं 4 को डिवाइड करता हूँ 6 से तो 10 पावर 4 डिवाइड बाय 10 पावर 6 में जब पावर्स माइनस हो जाएंगी तो -2 आएगा। इसमें अगर करते हैं दोनों पावर्स को डिवाइड तो 10 पावर 3 हो जाएगा, इसमें भी करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसमें भी करेंगे तो 3 हो जाएगा। सो इसमें से सबसे छोटा जो है वो पॉपुलेशन पर किलोमीटर स्क्वायर जो वैल्यू आएगी वो आएगी ग्रीनलैंड की। तो हमारा फाइनल आंसर इज सिंपली ग्रीनलैंड। There you go. Question number 8 I think was slightly tricky, given that you don't have a solid understanding of this topic, coordinate geometry. If you did, however, then I'm sure it must have been easy. But let's see what question 8 is asking for. The coordinates of midpoint of the line AB are 1, 2. The length of line AB is 10 units, so let's underline that. If the gradient of line AB is 0, find the coordinates of A and B. अच्छा, 0 उस line का gradient होता है जो horizontal होती है, ठीक है ना। तो अगर इस लाइन का ग्रेडियंट 0 है, सो दैट मीन्स ये डेफिनेटली एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसका मिड पॉइंट जो है, जिसको मैं कैपिटल M से लिख रहा हूँ, इस उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2। ठीक है, एक एंड पे A होगा और एक एंड पे B होगा, डजंट मैटर वेयर यू पुट व्हाट। ठीक है, सो सिंस इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन, वन थिंग्स फॉर श्योर वो ये कि द ओनली चेंज दैट विल सी इन A एंड B विल बी द चेंज इन X। ठीक है, Y जो होंगे वो दोनों के फिक्स्ड होंगे, because horizontal line का मतलब that we're traveling parallel to the x axis, and parallel to the x axis travel करने का मतलब है, जैसे अगर हम x और y axis पे देखें तो here's the x axis and here's the y axis. So if you're traveling parallel to the x axis, so the only coordinate that will change will be the x coordinate, y coordinate will not change at all. So yeah, so one thing's for sure वो ये कि a का भी y coordinate और b का भी y coordinate दोनों 2 होंगे। अब सिंस इस पूरी लाइन की लेंथ जो है वो 10 यूनिट्स है और m मिड पॉइंट है, सो दैट मींस m टू b का फासला भी 5 होगा और a टू m का फासला भी 5 यूनिट्स होगा। तो अगर आप m से लेट्स से b पे जाना चाहते हैं, ठीक है ना, आप m से b पे ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, जो आपका करंट x कोऑर्डिनेट है 1, उसमें आप 5 यूनिट्स ऐड कर देंगे। तो जो आप 5 यूनिट्स ऐड कर देंगे तो आपका नया x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6, सो दैट मींस b के कोऑर्डिनेट्स आ गए 6, 2। फिर अगर आप m से a पे जाना चाह रहे हैं तो अब आप 5 यूनिट्स पीछे आएंगे, और 5 यूनिट्स 1 से पीछे आने का मतलब है कि 1 माइनस 5 विच इज़ बेसिकली इक्वल टू -4। तो ये आ गए हमारे a के कोऑर्डिनेट्स। सही है, सो दैट्स 8 पार्ट A डन। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट B। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखें कि ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है ना क्वेश्चन नंबर 8 में, जो क्वेश्चन के साथ लिखी हुई है, this is applicable to part A and the same information is also applicable to part B as well। ठीक है, तो यही वाली however जो part A वाली information है वो part B में इस्तेमाल नहीं होगी because A and B are independent। however जो question में information दी हुई है आपको वो ज़रूर क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हों A, B and C वो सब में इस्तेमाल होगी। so that means अब जो हमारी लाइन है उसका जो ग्रेडियंट है वो है 3/4। अच्छा, ये जो ग्रेडियंट होता है
Now remember ये simply rise over run का ratio होता है, ठीक है. So that means अब जो मेरी line है it's a positive sloping line such that कि उसका rise और run का जो ratio है वो 3:4 है. और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अभी भी क्या हैं, अभी भी 1,2 हैं, बिकॉज रिमेंबर ये वो इन्फॉर्मेशन है जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है. एंड ऑल्सो लेंथ जो है हमारी वो 5 ऑन बोथ साइड्स, A to M and B to M as well. This looks more evenly divided. Now अब B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये हमें देखना पड़ेगा. We'll have to make use of this ratio 3:4. अब अगर आप A से M पे जाना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है हमें काम करते हैं एक ट्रायंगल बनाते हैं. अब 3 जो है is representing the number of units we'll have to move upwards and 4 is representing the number of units that we'll have to move rightwards. So ये basically आपका rise is to run का ratio आ गया. And the same case applies to when you're going from M to B. आपको 4 यूनिट्स रन करना पड़ेगा और 3 यूनिट्स राइज करना पड़ेगा, ठीक है. तो आप पहुंच जाएंगे B पे. अच्छा अब एक काम करते हैं, पहले B निकाल लेते हैं बिकॉज B निकालने के लिए हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है. अच्छा आप अगर एक चीज़ और गौर करें वो ये कि अगर हम इस 90 डिग्री ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें सो 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर को जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 5 बनेगा. सो दैट मीन्स हमने क्या किया, हमने इस ग्रेडियंट को एक 90 डिग्री ट्रायंगल में इनकॉर्पोरेट कर दिया. अब अगर आप M से B जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप 4 यूनिट्स रन करेंगे. एंड 4 यूनिट्स रन करने का मतलब क्या, अब आपका x जो है वो चेंज होगा एंड 1 + 4 विल गिव यू 5. सो दैट मीन्स B का x कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 5. अच्छा अब M पे करंट y कोऑर्डिनेट है 2. अगर आप B पे जाना चाहते हैं सो दैट मीन्स आपको 3 यूनिट्स राइज करना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि 2 + 3 जब आप करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, वो भी 5 आ जाएगा. सिमिलरली अगर आप M से A पे आना चाहते हैं तो अब आप क्या करेंगे, आप 3 यूनिट्स रन नहीं करेंगे बल्कि सिंस हम नीचे आ रहे हैं तो 3 यूनिट्स फॉल करना पड़ेगा. 3 यूनिट्स फॉल करने का मतलब कि 2 में से 2 इज द y कोऑर्डिनेट और 3 अगर मैं उसमें से कम कर देता हूँ तो वो हो जाएगा -1. एंड 4 यूनिट्स हमें रन करना पड़ेगा बट वील हैव टू रन बैकवर्ड्स. सो 1 से अगर मैं 4 पीछे जाऊंगा सो 1 - 4 इज -3. सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A and B. Let's move to the next question. Alright, so here's question number 9. Question number 9 में एक छोटा सा प्रॉब्लम, ये छोटी सी प्रॉब्लम ये थी वो ये कि y is greater than or equal to 6 नहीं था. Instead it was y is lesser than or equal to 6. सही है ना. So इस हिसाब से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं so let's see what happens. Basically हम पहले निकालने हमने coordinates of A. A कौन सा पॉइंट है, A वो पॉइंट है जहाँ पे हमारी ये वाली लाइन जिसकी हमें इक्वेशन भी दी हुई है किसको कट करिए, y एक्सिस को कट करिए. y एक्सिस को कट करने का मतलब है कि x को हम 0 कर देंगे. अच्छा इसमें भी एक कॉमन एरर था विच आई विल एक्सप्लेन शॉर्टली. वो ये कि पहले ये देख लेते हैं कि a आएगा कैसे. x को मैंने 0 कर दिया सो 2 × 0 विल बिकम 0 इक्वल्स टू 13. सो 3y equals 13 and y equals to 13/3. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको राउंड ऑफ करके किसी ने 4.2 किया था और किसी ने 4.3 कर दिया था. ये करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज अगर आप इसको 4.2 पर लॉक कर देते हैं तो दैट मीन्स आपने इसको एस्टिमेट कर दिया, you haven't given the exact answer. And the same story applies for 4.3 as well. So you're simply supposed to write 0 and 13/3, or if you wish to write this in mixed number form तो हो जाएगा 4 whole 1/3. That's also acceptable. But इसको राउंड ऑफ कर डेसिमल में लिख के राउंड ऑफ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, उससे आपका ये एक आसानी से जो मार्क आ सकता है वो फजूल में ज़ाया हो जाएगा. Part B says the shaded region R is defined by 5 inequalities. ठीक है, 2 of these are x is lesser than or equal to 6. अच्छा x is lesser than or equal to 6 का मतलब कि ये इसकी बात हो रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन निकालने की हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है. We're already given what the equation and the inequality is. y is lesser than or equal to 6 का मतलब इसकी बात हो रही है जो horizontal line है, तो इसकी भी हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है. So in short we have to write 3 inequalities. ठीक है, जिसमें से एक ये है जिसको मैं रेड से बना रहा हूँ. अच्छा अगर इसकी इक्वेशन की बात की जाए तो इसकी इक्वेशन तो होगी x equals to 1. ठीक है, अब जो रीजन हमें चाहिए r वो सिंस इसके राइट साइड पे है सो दैट मीन्स एक इनइक्वालिटी हमारे पास आ गई दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. ग्रेटर इसलिए कि राइट साइड है और इक्वल टू इसलिए बिकॉज इट्स अ सॉलिड लाइन. नंबर 2 इसको देख लेते हैं, ज़रा आसान है. इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी y equals to 2. द रीजन दैट वी वांट इज अबव सो दैट मीन्स इट विल बी ग्रेटर एंड इक्वल टू एज वेल सिंस इट्स अ सॉलिड लाइन. ठीक है,
फाइनली जो बात हो रही है वो बात हो रही है, लेट मी स्विच टू पर्पल, इसकी बात हो रही है, सही है ना। अब जो रीजन हमें चाहिए वो इसके ऊपर है और जो इक्वेशन हमें दी हुई है वो ये रही। सो इक्वेशन भी है हमारे पास, इनइक्वालिटी हमें लिखनी है तो वो हम लिखेंगे कैसे, 3y plus 2x is greater than or equal to 13। इसमें आप चाहें तो y को सब्जेक्ट भी बना सकते हैं, but you can leave it as it is since y is already positive, तो we don't have to worry about making y the subject। और greater इसलिए because जो रीजन हमें चाहिए वो ऊपर है, और equal to इसलिए because it's a solid line, ठीक है। So part C. Part C says the point P is in the shaded region R, given that AP is as large as possible, write down the coordinates of P। अच्छा AP क्या बनेगी, AP एक line बनेगी basically, दो points को जब हम join करते हैं, so what we get is a straight line, ठीक है। So here's A, let me switch to straight line, and P जो है वो इस region में कहीं पे है, such that AP is as large as possible, so that means P जो होगा वो इस region की बिल्कुल boundary पे कहीं पे होगा। एक जो possibility होती है वो ये बन रही है, दूसरी जो possibility बन रही है वो ये बन रही है, ठीक है। अब आपने इन दोनों को मेजर करना है अपने स्केल से और देखना है कि विच वन ऑफ देम हैपन टू बी लार्जर देन दी अदर। तो उसमें से जो बड़ी वाली लाइन बनेगी आपके पास वो ये वाली बनेगी, जो यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है, और ये होंगे हमारे p के कोऑर्डिनेट्स जो कि होंगे 6,2। सो दैट्स इट, ये हमारा ये वाला पार्ट भी खैर से सॉल्व हो गया। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 10, मेंसुरेशन। So the diagram shows the part of an earring. It is in the shape of a sector of a circle radius 3 cm and angle 45 degrees, which form a sector of radius 2 cm and angle 45, from which a sector of radius 2 cm and angle 45 degrees has been removed. Now as far as I can say, if you wanted to score marks in this, all you had to do was remember just one formula, and that was area is equal to theta upon 360 into pi r square। I think अगर आपको ये formula याद होता तो आप conveniently इस सवाल में marks score कर लेते। अच्छा, अब आंसर भी हमें पाई के फॉर्म में देना है, सो दैट मीन्स ज़्यादा इसमें कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत भी नहीं है, पाई को पाई ही रहने देना है हमने। सो हमें निकालना है शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन का एरिया, शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो ये वाला फॉर्मूला है, सिर्फ जो चीज़ चेंज होगी वो होगा रेडियस। बड़े वाले सेक्टर का जब एरिया निकालेंगे तो रेडियस 3 लेंगे, और छोटे वाले का जब निकालेंगे तो रेडियस 2 लेंगे, ठीक है। सो 45 ओवर 360 इंटू पाई 3 स्क्वायर, इससे आ जाएगा बड़े वाले का, माइनस इसमें से कर दें 45 ओवर 360 इंटू पाई 2 स्क्वायर, तो इसमें से आ जाएगा छोटे वाले का, सही है। इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। 45 1s are 45 and 45 8s are, yep 45 8s are, सही है। So similarly 45 1s are 45 8s are 360। आप 5 से भी कर सकते थे, 9 से भी कर सकते थे, but since I remembered, so I went for 45 1s are and 45 8s are। So what you're looking at is simply 9 pi, 9 इसलिए because 3 square होके 9 हो जाएगा, 9 pi upon 8 minus 4 pi upon 8, ठीक है। So 9 pi minus 4 pi is 5 over 8 pi, and that's what our final answer is, 5 over 8 pi centimeter square। अब पार्ट बी में सवाल आपसे क्या कह रहा है कि भाई जो आपका ईयरिंग बनेगी वो बनेगी फ्रॉम अ शीट ऑफ सिल्वर, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई देयर इज अ क्वेश्चन मार्क हियर, बट खैर लेट्स इग्नोर दैट। द मास ऑफ 1 centimeter square of the silver is 1.6 grams, ठीक है। बाय टेकिंग द वैल्यू ऑफ पाई टू बी 3, एस्टिमेट, सिंस हम पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रहे इसलिए सवाल ने एस्टिमेट का वर्ड यूज़ किया है, द मास ऑफ द ईयरिंग। तो इसका मतलब ये है कि 1 centimeter स्क्वायर की जो सिल्वर शीट होगी उसका वजन होगा, मास होगा 1.6 ग्राम्स। अब सिंस जो हमारी ईयरिंग बन रही है उसका एरिया आ रहा है 5 over 8 पाई, और पाई की जगह हमने फिट कर देना है 3, इसका मास कितना होगा वी डोंट नो दैट, सो लेट्स कॉल इट x फॉर द टाइम बीइंग। लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई एंड फिगर आउट व्हाट द वैल्यू ऑफ x इज गोइंग टू बी। सो x इज इक्वल्स टू 5 into 3 हो जाएगा 15, 15 upon 8 into 1.6। अब अगेन फ्रैक्शंस आपने मल्टीप्लाई करने हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, फ्रैक्शंस को डेसिमल में ना कन्वर्ट करें, इंस्टेड डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें तो हो जाएगा 16 over 10, सही है। इससे आपका सब सिंप्लीफाई भी हो जाएगा, 8 1s are 8 2s are 2 1s are 2 5s are 15 over 5, so that's 5 1s are 5 3s are, so 3 grams हमारा आंसर आ गया, nothing to worry about, मार्क्स भी आ गए। Question number 11. Cecil bought a camera for $120. After 2 years, she sold it for $90. Calculate the percentage loss. Alright, no big deal. Percentage loss calculate किया जाता है by keeping your loss in the numerator and dividing it by the cost price, and since percentage है तो multiply कर देंगे हम 100 से। So अगर $120 का ख़रीद के उसको 2 साल के बाद $90 का बेचना पड़ रहा है, so that means उसको $30 का नुकसान हो गया। So हमारा जो loss है वो $30 है,
एंड जितने का उसने ख़रीदा वो बेसिकली उसकी कॉस्ट हो गई, उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। परसेंटेज चाहिए तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, 0 से ये 0 कैंसिल कर दें, एंड लेट्स सिंप्लीफाई इट विथ 3 और 4, 3 से कर लेते हैं चलें, 3 4s are 3 10s are, and we have 100 upon 4 which is equal to 25%। ठीक है, अच्छा ये आप इस तरह से भी कर सकते थे कि आप 100 लेते हैं, 100 के सामने रखते हैं 120, ठीक है, here's percentage, here's dollar, $30 का लॉस, $30, यस, तो डॉलर्स के नीचे 30, एंड ये कितने परसेंट के बराबर है, x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आपका आंसर 25% ही आता। Alright, so part B. Some money is shared between Miriam and Nina in the ratio 2:3. What percentage of the total money shared does Miriam receive? So basically, total money का मतलब क्या है कि जितने भी हमारे पास डॉलर्स हैं हमने किए उसके 5 हिस्से, ठीक है, और वो डिस्ट्रीब्यूट करती है between two people M and N. M को मिले 2 और मरियम को wait, हाँ, M को मिले 2 और N को मिले 3, सही है। अब हमने निकालना है कि व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल मनी डज एम रिसीव, ठीक है, तो इसको मिला है 2/5 ऑफ द टोटल, और सिंस हमें परसेंटेज बताना है, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट व्हाट द एक्चुअल अमाउंट इज, एंड में सिंस हमने परसेंटेज ही कैलकुलेट करना है तो हम इसी फ्रैक्शन का 100% कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 5 1s are 5 2s are 10, 0 carried, so 2 into 20 is 40%। There you go। Okay, now part C, given that A is to B is 5:6 and B is to C is 3:8 and we have to find A is to B is to C। ऐसे सवाल मैं हमेशा इस तरह रिकमेंड करता हूँ कि आप जो हैं, जो कॉमन है ना दोनों में, उसको आप रखें बीच में, और कॉमन इस केस में है B, ठीक है, क्योंकि वो दोनों रेशियोज में मौजूद है, तो आप लिखें A is to B is to C। A is to B लिखें 5:6, ठीक है, और B is to C उसके नीचे से आप लिखें 3:8। अब सिंस आपको A is to B चाहिए, A is to B is to C चाहिए, सॉरी, तो आप क्या करें, रिमेंबर दिस, क्रॉस together, cross, so 3 into 5 will give us 15, 6 into 3 will give us 18 and 6 into 8 will give us 48। अब जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाएं तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि क्या ये सिंस रेशियो में दो या जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस्ड होती हैं, तो आप बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकती हैं। अब सिंस ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं, सो दैट मीन्स हम इनको बआसानी 3 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगा, ठीक है, I'll write it here that I'm dividing all of them by 3 so that you remember। 18 divided by 3 is 6 and 48 divided by 3 is 18, is it, no, it's 16, ठीक है, so 5:6:16 is our final answer, and that's about it for question number 11। Question number 12, again very easy question, you're given a cuboid जिसकी आपको लेंथ दी हुई है 40, विड्थ दी हुई है 20 और डेप्थ दी हुई है h, एंड उसकी जो वॉल्यूम है, अब अगेन इसमें अगर आपको मार्क चाहिए, all you had to do was remember the formula for calculating the volume of a cuboid, which is length into width into height, ठीक है, वॉल्यूम की जगह आप वॉल्यूम फिट कर दें, लेंथ की जगह आप 40 फिट कर दें, विड्थ की जगह आप 20 रहने दें और h को h रहने दें, एक 0 इससे कैंसिल करें, एक 0 इससे कैंसिल करें, 24 equals to 8h, h equals to 24 upon 8, so 24 upon 8 is 3 centimeter, and that's it, we've got our 1 mark। Calculate the volume of concrete needed to make 1000 of these slabs, give your answer in meter cube। Okay, so एक के लिए जो वॉल्यूम चाहिए रिक्वायर्ड है वो 2400 है। अब since you're making 1000 of these, so we're going to simply multiply it by 1000। Now be careful, इससे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन since हमें आंसर मीटर क्यूब में चाहिए, right, so मीटर से सेंटीमीटर हम जाते हैं by dividing by 100, ठीक है ना। However, if you're going from meter cube to centimeter cube, तो आप बजाय इसके कि 100 से डिवाइड करें, आप 100 के क्यूब से डिवाइड कर लें, नो बिग डील। सो अब सिंस इसमें हमारा आंसर जो आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा और हमने उसको देना है मीटर क्यूब में, तो हम क्या करेंगे, हम 100 के क्यूब से उसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। सो ज़्यादा कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, अल्टीमेटली सारे जीरोस आपके कैंसिल ही हो जाएंगे, और 2400 इंटू 1000 का मतलब है कि आप 2400 के आगे 3 जीरोस और लगा दें, 100 क्यूब का मतलब है कि ये हो जाएंगे 6 जीरोस विच मीन्स अ मिलियन। So there you go, 2 4 6, yep, so 3 3 करके कैंसिल करते हैं, 3 ऊपर से 3 नीचे से, 2 ऊपर से 2 नीचे से, so ultimately we're left with 24 upon 10, जिसको सिंप्लीफाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आंसर आप सीधे सीधे लिखते हैं 2.4 मीटर क्यूब, and that's about it।
Part C, a mathematically similar, ठीक है, so make sure that you underline this. Slab has length 60 centimeter. Calculate the volume of concrete in centimeter cube needed to make one of these larger slabs. So इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये वाला concept याद हो कि जब दो objects similar होते हैं तो उनकी जो volumes का ratio होता है वो बेसिकली उनकी लेंथ के रेशियो के क्यूब के बराबर होता है, ठीक है. सो हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए लार्जर का. सो V1 हमारे पास है विच इज़ द स्मॉलर स्लैब 2400. V2 क्या है, वी डोंट नो दैट. ऑलराइट, सो L1 is basically the length of the smaller slab which right here is 40, ठीक है ना, ये रही वो 40. So here we're gonna fit 40 और इधर हम रखेंगे क्या, इधर हम रखेंगे 60. So 60 and then don't forget to cube it. ठीक है, अब before you cube it, let's simplify it. ठीक है, that'll make things a lot easier. So 2400 over V2 equals एक जीरो यहाँ से cancel, एक जीरो यहाँ से cancel. 4 और 6 को भी simplify कर लें तो ये हो जाएगा 2/3. ठीक है, so 2 का cube is 8 and 3 का cube is 27. ठीक है, 8 and 2400 भी further simplify हो सकते हैं. Remember, when you have an equals to sign in between, you only simplify the numerator with the numerator across the equals to sign. So 8 ones are, 8 threes are 24, 0 carried forward. अब आपको ये however ज़रूर करना पड़ेगा कि आपको 27 को multiply करना पड़ेगा 300 से. Now 27 times 3 is 3 sevens are 21, 3 twos are 6, 6 plus 2 is 8. So 81 and then those 0 carry forward कर दिया. So 8100 is our final answer. Let's move to the next part. Question number 13. One approximate solution of the equation sin x equals 0.53 is x equals to 32. Use this value of x to find the solution of the equation that lies between 90 and 180. So that means हमें जो angle दिया हुआ है वो acute है and what we need to state is the obtuse angle. ठीक है, so इसके लिए make sure that you remember this identity, that sin 180 minus theta equals to sin theta, which basically means that जो sin 30 की value निकलेगी, ठीक है ना, whatever that is equal to, वही बराबर होगी sin of 150 की value के. तो अगर sin x की वैल्यू 0.53 और x बराबर है 32 के, तो एक और वैल्यू होगी जिसका साइन बराबर होगा 0.53 के, और वो कैसे आएगा, 180 में से 180 में से 32 माइनस करके, which is equal to 148. So the other value of x would be the other value of x would be 148, and that's it. Now part B, write down the value of cos ACD. अच्छा, ACD है बाहर वाला एंगल, ठीक है, ये हम नहीं निकाल सकते. However, what we can calculate is the cos of the angle that's inside, which is ACB. तो if I were to calculate cos ACB, मुझे चाहिए होगा adjacent, ठीक है ना, मुझे चाहिए होगा hypotenuse, और मैं इनको डिवाइड कर दूंगा. Adjacent भी है मेरे पास which is 12, hypotenuse भी है मेरे पास which is 13. अब since ये बाहर वाला एंगल है तो एक आइडेंटिटी याद रखें, वो ये कि cos 180 माइनस थीटा इक्वल्स माइनस cos थीटा. तो ये बराबर हो जाएगा -12 over 13 के. वो इसलिए क्योंकि हम cos of ACB ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है. अगर ये थीटा हो जाएगा तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा. तो cos 180 माइनस थीटा बराबर होगा नेगेटिव इंटू cos of थीटा. सो आवर फाइनल आंसर वुड बी -12 over 13.